Hello student, welcome to Scholarship Standard 5th online preparation classes, and today we are going to learn subject English and unit 1 vocabulary, and in that first word formation. So let us start our today's video. Words are divided into different kinds or classes called as parts of speech. Means while speaking we make use of many words. We know very well that these words are divided into different classes according to their use. So जब भी हम डेली स्पीकिंग करते हैं तो हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं. तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं. तो वो कौन से पार्ट्स होते हैं? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स है, एंड दैट इज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, verb, pronoun, preposition, conjunction and interjection. These are the 8 parts of speech. So let us learn what is noun, adjective and what is part of speech. So first is noun. What is noun? The name of person, place, animal, thing, feelings is called as noun. For example, Bal Gangadhar Tilak, Kolkata, tiger, etc. Do you know student, noun are divided into 5 kinds, and that one first is proper noun, common noun, material noun, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. मैं यहाँ पे आपके लिए ये जस्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, डिटेल में हमें यहाँ पे इसके स्टडी नहीं करनी है. ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है एडजेक्टिव. एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन. देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के भी 8 काइंड्स है. कौन से हैं? प्रॉपर, क्वालिटी, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, quantity, demonstrative, distributive, interrogative and possessive. Okay, so next one is adverb. An adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb in a sentence. So there are 9 kinds of adverb. There is a time, manner, place, frequency, affirmation and negation, interrogative, relative, adverb of degree and adverb of sentence. Next one is verb. A verb is a word that used to tell something about or a thing. ये verb हम सीखते आए हैं स्टूडेंट की. verb किसे कहते हैं? जो हमें जो thing होती है, जो कुछ हमें सेंटेंस में हमें कुछ thing दी गई है, उसके बारे में हमें कुछ something बताया जाता है, तो उसे verb कहते हैं. So there are 7 kinds of words. Verb: finite, principal, transitive, intransitive, auxiliary, non-finite and infinite. Okay, so next one is pronoun. What is pronoun? A word that relates or emphasizes a noun or equivalent is called pronoun. For example, I, we, he, she. जैसे कि सेंटेंस में जब भी कभी I, we, he, she, they, तो इस तरह के वर्ड्स जहाँ पे यूज होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. And there are 10 kinds of pronoun. Which one? Personal, impersonal, demonstrative, distributive, indefinite, reciprocal, reflective and emphatic, relative, interrogative and possessive. Okay, so next one is preposition. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with other parts of speech in a sentence. मतलब preposition क्या होते हैं कि एक word यूज करते हैं जो noun और pronoun के पहले यूज होता है. क्यों? क्योंकि इसका जो relation है वो other parts of speech से related होता है एक sentence में. So उसे हम preposition कहते हैं. And there are 6 kinds of preposition: time, place, possession, movement and direction, cause, reason and purpose, agent, manner or method. These are the kinds of preposition. Next one is conjunction. What is conjunction? A conjunction is a word which is used to join word, phrase, clause and sentence. तो एक कंजक्शन मतलब क्या होता है कि जो वर्ड को, फ्रेज को या क्लॉज, सेंटेंस किसी को ज्वाइन करता है बीच में, जैसे कि एंड, और, बट, इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन. मीन्स कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव.
ओके, नेक्स्ट वन है इंटरजेक्शन. एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम हिडन फीलिंग ऑफ वंस माइंड. हिडन फीलिंग मतलब क्या है, जैसे कि हम बहुत एक्साइट होते हैं तो हम बोलते हैं हे यू हुर्रे, ऐसे कुछ कहते हैं. या फिर जब भी हम सैड होते हैं तो ओ नो वगैरह, ऐसे जो फीलिंग्स हम देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, तो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे कि अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, हुर्रे वी वन द मैच. तो इस प्रकार के एक्सप्रेशंस वहां पे होते हैं. तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अ वर्ड विच इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ स्पीच कैन आल्सो बी यूज्ड एज अनदर पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेम और अनदर सेंटेंस. ओके, मीन्स फॉर एग्जाम्पल द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एंड एन एडजेक्टिव, a noun and a verb, an adverb and preposition etc. ओके, हाउएवर द मीनिंग्स में बी डिफरेंट. तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जैसे कि एक वर्ड जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस में अगर वो एडजेक्टिव आया है तो दूसरे सेंटेंस में भी सेम वर्ड एडजेक्टिव ही आएगा, क्योंकि दोनों के मीनिंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं फ्री हम वर्ड लेते हैं, जैसे कि एक एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पे लिखा है कि बाय वन गेट वन फ्री. ओके, और जब भी दो दोस्त मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि एक दूसरे से बोलते हैं कि आज फ्री हो क्या, हम घूमने जाते हैं. तो दोनों फ्री में कितना डिफरेंट है आप देख सकते हैं कि एक फ्री मतलब जो वहां पे बाय वन गेट वन फ्री कहा गया है, और दूसरा फ्री जो है वो दोस्त से कहा गया है कि अगर तेरे मतलब फ्री मतलब कुछ काम नहीं है तो हम घूमने जाते हैं. तो इस तरह का वर्ड जो होते हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. एंड तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे में हो सकते हैं. हो सकता है एक इसमें एडजेक्टिव हो तो दूसरे सेंटेंस में वो वर्ड वर्ब हो सकता है, एक में वो नाउन है तो दूसरे में वो एडजेक्टिव हो सकता है, अगर एक में प्रेपोजिशन है तो दूसरे में हो सकता है एडवर्ब होगा. तो इस तरह से वो डिफरेंट मीनिंग के ऊपर वो डिपेंड करता है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. ओके, सो यहाँ पे सैंपल क्वेश्चंस है. दैट वाज अ डैश स्टोरी श्रेयल. तो यहाँ पे आप मुझे ये सेंटेंस आपने पढ़ा है तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा मैं बताती हूँ, क्योंकि जब भी आप इस तरह के फिलअप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपको जो सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली क्या वर्ड यहाँ पे यूज करना है. सो दैट वाज अ डैश स्टोरी. स्टोरी कैसी होती है, इंटरेस्टेड होती है, सुपर्ब होती है, ग्रेटली या ग्लोरीफाई. तो यहाँ पे आप सुपर्ब स्टोरी भी कह सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टोरी भी कह सकते हैं. सो यहाँ पे आप जब भी बताते हैं किसी को बताते समय वाओ यो सुपर्ब स्टोरी थी, बहुत सुपर्ब थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. तो सेकेंड हम देखते हैं, जैसे कि फाइंड द ऑड मैन आउट. ऑड मैन आउट मतलब क्या, कि कभी कभी हो सकता है कि हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से 3 ऑप्शन एक ग्रुप के रहेंगे और एक अलग ग्रुप का रहेगा. तो इसमें से 4 में से 3 ग्रुप को एक साइड करके एक जो उसी ग्रुप में नहीं है तो वो हमें फाइंड आउट करना होता है. सो उसे कहते हैं फाइंड द ऑड मैन आउट. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीप, मीक, रिच एंड डेप्थ. सो डीप, मीक एंड रिच ये क्या है, एडजेक्टिव है. क्यों एडजेक्टिव है, जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा था कि एडजेक्टिव मतलब क्या होता है. ये देखो, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन. ओके, और उसके काइंड्स भी हमने सीखे थे. तो हो सकता है यहाँ पे ये सब डीप, मीक, रिच ये सभी एडजेक्टिव है, ओनली डेप्थ जो है वो एडजेक्टिव नहीं है. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि डेप्थ मतलब नाउन है वो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, पिक आउट द वर्ड दैट इज अ नाउन. तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से नाउन जो है वो करेक्ट नाउन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. जैसे कि आप देख सकते हैं चेंज, फेमस, ग्रेट एंड स्पेसिफाई. सो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 फेमस एंड ग्रेट, ये क्या है? ये दोनों एडजेक्टिव है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो स्पेसिफाई, वो क्या है? वो वर्ब है। ओके, सो यहाँ पे हमें नाउन चूज करना है। सो यहाँ पे नाउन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 चेंज। नेक्स्ट है पिक आउट द वर्ड दैट इज एन एडजेक्टिव। सो इसमें ऐसा वर्ड हमें यहाँ पे यूज करना, पिकअप करना है जो एडजेक्टिव है। ओके, सो वो कौन सा होगा स्टूडेंट? फ्रेंड, फ्रेंडली, फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडलीनेस। सो यहाँ पे जो फ्रेंड, फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडलीनेस है, ये सभी क्या है? नाउन्स है। ओनली फ्रेंडली इज द एडजेक्टिव। ओके, सो यहाँ पे इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है कि जो मैंने डेफिनेशंस आपको बताई है वो डेफिनेशंस आप ध्यान में रखना। उसके ऊपर आधारित हमें जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, फिलअप पूछेंगे, तो वो फिलअप जो है वो हमें वहाँ पे सॉल्व करने हैं। मतलब वो सेंटेंस हमें ठीक से पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। तो स्टूडेंट आई होप कि वर्ड फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो इसके ऊपर नवनीत के बुक में हमारे जो क्वेश्चंस दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको खुद को सॉल्व करने हैं। और ये आपके पास एक नोटबुक तैयार रखें प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। तो ये सभी प्रैक्टिस के जो भी क्वेश्चंस है ये आपके बुक में आप सॉल्व करें। और मैं इसके वीडियोस जल्द ही इसके वीडियोस में यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपके जो भी आंसर्स है वो मैंने दिए हुए आंसर्स के साथ टैली करने हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको नहीं समझा, कुछ भी आपको यहाँ पे डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।